بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم احباب، آپ احباب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پنجابی زبان، پنجاب کی رہن سہن، پنجابی شاعری اور اس کے علاوہ پنجاب کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے کہ پنجاب کی تاریخ کیا ہے، جغرافیائی وسعت کیا ہے، پنجابی کے شعراء کون کون سے ہیں اور پنجابی زبان اور پنجابی روایات کیا ہیں۔ پنجابی کو شاہمکھی پنجابی اور گرمکھی پنجابی میں ترتیب دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ جو لوگ خطہ پنجاب میں رہتے ہیں وہ دو قسم کی پنجابی زبان کو بولتے ہیں، شاہمکھی پنجابی یا گرمکھی۔ اس کے علاوہ جو حساب کتاب میں زبان بولی جاتی ہے پنجابی کی، وہ تمام کے تمام پنجابی لہجے ہیں، چاہے وہ شاہمکھی کا لہجہ ہو یا گرمکھی کا لہجہ ہو۔ پنجابی بولنے والوں میں ہندو مت، سکھ مت، اسلام اور مسیحیت کے پیروکار شامل ہیں۔ ہندو مت کے علاوہ باقی تمام تینوں مذاہب میں اس زبان کو خاص حیثیت حاصل رہی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں کیے گئے مردم شماریوں کے مطابق دنیا میں پنجابی بولنے والوں کی تعداد 14 سے 15 کروڑ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ 14-15 کروڑ سے بھی زائد ہو سکتی ہے۔ اس زبان کے بہت سے لہجے ہیں، جن میں سے ماضی لہجے کو ٹکسالی مانا جاتا ہے۔ یہ لہجہ پاکستان میں لاہور، شیخوپورہ، گوجرانوالہ کے اطراف میں، جبکہ ہندوستان میں امرتسر اور گرداسپور کے اضلاع میں مستعمل ہے۔ 1999 کی شماریات کے مطابق پنجابی اور ہندی دنیا میں 11ویں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان تھی۔ اگر بات کریں پنجاب کی تو پنجاب کا لفظ ابن بطوطہ کی تحریروں میں ملتا ہے، جو اس نے 14ویں صدی عیسوی میں اس علاقے کا دورہ کرتے ہوئے لکھی۔ اس کا وسیع پیمانے پر استعمال 16ویں صدی کے دوسرے حصے کی کتاب تاریخ شیر شاہ سوری میں ملتا ہے، جس میں پنجاب کے شیر خان کے قلعے کی تعمیر کے حوالے سے بھی ذکر ہے۔ اس سے پہلے پنجاب جیسا تذکرہ مہابھارت کی قصے کہانیوں میں بھی ہے، جو پنجا ندا یعنی 5 ندیوں کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد آئین اکبری میں ابو الفضل نے لکھا ہے کہ یہ علاقہ 2 حصوں میں منقسم تھا، لاہور اور ملتان۔ اس آئین اکبری کے دوسرے حصے میں ابو الفضل نے پنجاب کو پنجنند لکھا ہے۔ اس کے علاوہ مغل بادشاہ جہانگیر نے اپنی تزک جہانگیری میں پنجاب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ پنجاب کا لفظ فارسی زبان کا لفظ ہے، یعنی پنج یعنی 5 اور آب یعنی پانی سے ماخوذ ہے، یعنی 5 دریاؤں کی سرزمین۔ یہ وہ 5 دریا ہیں جو اس علاقے میں بہتے ہیں۔ آج کل ان میں سے 3 دریا تو مکمل طور پر پاکستانی پنجاب کے علاقوں میں بہتے ہیں، جبکہ 2 دریاؤں کے مرکز بھارتی پنجاب سے ہو کر آئے ہیں۔ اس سے قبل اس کا نام سیت سندھو یعنی 7 دریاؤں کی سرزمین تھا۔ تاریخ جہلم میں انجم سلطان شہباز نے لکھا ہے کہ سیت کا مطلب 7 اور سندھو کا مطلب دریا ہے۔ نیز شیر شاہ نے جو قلعہ بنایا تھا وہ جہلم میں قلعہ روہتاس کے نام سے موجود ہے۔ اگر پنجابی زبان کی تاریخ کے حوالے سے بات کی جائے تو پنجابی زبان کی بنیاد پراکرت زبان سے ہوئی۔ اس زبان میں ادب کا آغاز بابا فرید گنج شکر سے ہوتا ہے۔ بعد ازاں سکھ مت کے بانی گرو نانک کا نام آتا ہے۔ سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو نے گرو گرنتھ صاحب کی تالیف کی تھی۔ یہ کتاب گرمکھی رسم الخط میں لکھی گئی تھی اور اس میں پنجابی کے علاوہ برج بھاشا اور کھڑی بولی کا استعمال بھی کیا گیا۔ 15ویں صدی سے 19ویں صدی کے درمیان مسلمان صوفی بزرگوں نے پنجابی زبان میں بے مثال منظوم تحریریں رقم کی۔
सबसे मकबूल बुजुर्गों में बाबा बुल्ले शाह शामिल हैं। उनकी शायरी काफियों पर मुश्तमिल है। किस्सा खानी भी पंजाबी अदब की एक मकबूल सिन्फ है। सबसे मशहूर किस्सा हीर और रांझे की मोहब्बत का किस्सा है, जो कि वारिस शाह के कलम से रकम होकर अमर हो चुका है। दीगर सूफी शोरा में शाह हुसैन, सुल्तान बाहू, शाह हुसैन और ख्वाजा फरीद शामिल हैं। तकसीम हिंद का सबसे बुरा असर पंजाबी जुबान पर पड़ा। एक तरफ हिंदू पंजाबी जो कि सदियों से पंजाबी बोलते आए थे, अब हिंदी को अपनी मादरी जुबान कहलवाने लगे। पाकिस्तान में पंजाबी को किसी किस्म की सरकारी हैसियत न दी गई, जबकि हिंदुस्तान में पंजाबी को सरकारी हैसियत देने की राह में रुकावटें हायल की गईं। ताहम अब रियासत पंजाब में पंजाबी सरकारी और दफ्तरी जुबान है। रियासत पंजाब से मुराद भारत की रियासत पंजाब है। पंजाबी कल्चर की अगर बात की जाए तो पंजाबी कल्चर बहुत ज्यादा जखीम है। यानी ये कहा जा सकता है कि पंजाबी कल्चर में बहुत सारी ऐसी रिवायात हैं जिन रिवायात को लेकर बहुत ज्यादा लोग गर्व करते हैं, बहुत ज्यादा लोग फख्र महसूस करते हैं। अगर पंजाबी रिवायतों की बात की जाए, पंजाबी सकाफत की बात की जाए, रिवायत हुस्न और गीतों की बात की जाए, तो पंजाबी सकाफत जो है इसकी जो रिवायत है वो बहुत खूबसूरत रिवायत है। पंजाबी सकाफत में भंगड़े को, ढोल पर डांस करने को, ढोल पर नाचने को, अशोक को, विशाल मटू को और ये तमाम की तमाम ऐसी जो कम्युनिटीज हैं और ऐसे जो मौके हैं उनको बहुत बेहतर समझा जाता है और उनके जरिए से लोगों में गठजोड़ पैदा किया जाता है। इसके अलावा अगर पंजाब के रिवाजों और रसूम की बात की जाए तो पंजाब में ये भी रिवाज है कि मैयत के साथ एक देग चावलों की पककर कब्रिस्तान जाती है, जो कि दफन के बाद वहां फुकरा को तकसीम कर दी जाती है। और उत्तर प्रदेश में तो कच्चा गल्ला और पैसे लिए जाते हैं जो कब्रिस्तान में तकसीम होते हैं। के अलावा पंजाब में घड़ोली की रस्म भी है, जो कि अब बहुत ज्यादा मादूम होती जा रही है। पंजाब के दीगर अजला की तरह तमाम के तमाम अजला की तरह जंग में भी शादी की कुछ अनोखी रसूमात और तकरीबात अपनी सादगी और खूबसूरती की बिना पर एक अहम मकाम रखती हैं, जिनमें घड़ोली की जो रस्म है ये कदीम रस्म है और इस कदीम रस्म को एक अरसा तक वो मकाम हासिल रहा है जो शायद दूसरी कोई भी रस्म हासिल नहीं कर सकी। ताहम वक्त की बेरहम लहरों में बहती ये कदीम रस्म अब माजी का हिस्सा बनती जा रही है। घड़ोली की रस्म उस वक्त अदा की जाती थी जब निकाह के बाद बारात पिंडाल से दुल्हन के घर ले जाती थी। घड़ोली दरअसल दो गढ़ों पर मुश्तमिल होती है जिन पर खूबसूरत तरीके से नक्शो निगारी की जाती है। एक गड़ा साइज में दूसरे गड़े से छोटा होता है। छोटे गड़े को बड़े गड़े के ऊपर रखा जाता है और बाद अज़ा उनको एक रंगीन कपड़े जिस पर कढ़ाई का खूबसूरत काम हुआ होता है उससे ढांप दिया जाता है। इसको दूल्हे की बहनें या दीगर औरतें उठाती हैं और ढोल की थाप पर इलाके के किसी मुअज्जिज़ के घर जाकर उसमें पानी भरा जाता है। बुजुर्ग बताते हैं कि कुछ अरसा पहले इस पानी से वुजू करवा कर ही दुल्हन को शादी का जोड़ा पहनाया जाता था, लेकिन अब सिर्फ उंगली डबोने पर ही इक्तफा कर लिया जाता है। 20 साल से घड़ोलियां बनाने वाला मोहम्मद अशरफ, उसका कहना है कि कई पुश्तों से शादियों में हम काम कर रहे हैं और घड़ोली देने को उनके यहाँ फख्र समझा जाता है, क्योंकि इस पर उनको पैसों के अलावा मेवाजात, आटा और चीनी भी मिलती है। अब पहले जैसा दौर और वो लोग नहीं रहे, क्योंकि अब लोग शादी हॉल्स में जाकर रसूमात करते हैं जहां इतना वक्त ही नहीं होता कि निकाह और खाने के सिवा कोई और काम हो सके। जब मुख्तलिफ लोगों से मुख्तलिफ रिवाजों और मुख्तलिफ हालातों वाक़यात की बात की गई
और उनसे पंजाबी जुबान की अहमियत और पंजाब के बारे में बात की गई तो वो पंजाबी जुबान की अहमियत को लेकर बहुत ज्यादा पुरजोश नजर आए। पाकिस्तान में तकरीबन 40 से 45% लोग हैं जो पंजाबी जुबान बोलते हैं। पाकिस्तान में पंजाबी आबादी दो अहम ग्रोहों में तकसीम समझी जाती है, जिमीदारा और कौम। जिमीदारा असल में उन पंजाबियों को कहते हैं जो ज़राअत और काश्तकारी से मुंसलिक होते हैं। जिमीदार ग्रोह मजीद राजपूत, जट्टों, शेखों, गुजरों, गाखड़ों, डोगरों और रहमानियों में मुनकसिम होता है। पाकिस्तान में पंजाबी अक्सरियत जो है वो मुसलमान है। पाकिस्तान में अगर पंजाबी बोलने वालों की बात की जाए तो पंजाबी बोलने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो कि 44.15% गिनी जाती है। पंजाब में पंजाबी 75%, सिंध में 6%, दारुल हुकूमत यानी इस्लामाबाद में 71% और बलूचिस्तान में 2% पंजाबी बोली जाती है। इसके अलावा भारत में भी पंजाबी जुबान बोली जाती है। भारत में पंजाबी मजहबी एतबार से दो अहम ग्रुपों में तकसीम है, एक सिख आबादी और दूसरी हिंदू आबादी। भारत में पंजाबी आबादी तकरीबन 4% है, जो तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा अफराद बनते हैं। पंजाबी लोगों में सबसे ज्यादा 2 मज़ाहिब हैं। पाकिस्तान में मुकीम पंजाबी अक्सरियती तौर पर मुसलमान, जबकि भारत में मुकीम पंजाबी सिख मजहब के पैरोकार हैं। पंजाबी अक्सर मुसलमान हैं जो सुन्नी इस्लाम के फिक़्ह हनवी के पैरोकार हैं। पंजाबी लोगों की मादरी जुबान पंजाबी है, जो कि यूरोपीय जुबान बंद हिंद यूरोपीय जुबान है, जो बाशिंदगाने पर पंजाब में मुरव्विज है। जैसा कि पहले बताया कि पंजाबी जो लोग हैं दुनिया भर में 14 से 15 करोड़ की तादाद में मौजूद हैं। पंजाबी सकाफती खाने की बात करें तो पंजाब में तंदूरी खाने के अलावा बहुत ज्यादा शौकीन हैं। पंजाब सकाफती खानों में मुर्ग टिक्का, आलू गोभी, पराठा, देसी लस्सी, तंदूरी चिकन, जीरा चावल, पंजीरी, तड़का दाल, सिवैयां, गाजर हलवा, अचार गोश्त और पंजीर शामिल हैं। इसके अलावा पंजाब में बहुत सी सकाफती रस्में शामिल हैं और इन सकाफती रस्मों की तरवीज भी बहुत ज्यादा है। सकाफती रस्मों को लेकर लोग इज्जत और गैरत की अलामत समझते हैं। सबसे मारूफ रक्स भंगड़ा है, जो मुख्तलिफ तकरीबात और त्योहार में किया जाता है। भंगड़ा, सिम्मी, गिद्धा, किकली, झूमर, डंडास और जुगनी, ये तमाम की तमाम रक्स हैं और रक्सों की किस्में हैं जो मुख्तलिफ दौरानिये में मुख्तलिफ लोग डालते हैं। उम्मीद है कि आपको तारीख पंजाब जो है और पंजाबी जुबान और अदब के बारे में काफी राय मालूम हो गई होगी और ये भी पता चला होगा कि पंजाबी जुबान की क्या अहमियत है।